نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر صدقہ فطر کے طور پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں یہ بھی حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو عید الفطر کی نماز کے جانے سے پہلے دے دیا جائے۔ صدقہ فطر کا دوسرا نام صدقہ صوم بھی ہے۔ اس کا ایک اور نام زکوٰۃ الصوم اور زکوٰۃ رمضان بھی ہے، اور اس کو صدقۃ الرؤوس کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت امام وقیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نماز میں سجدہ سہو کی طرح ہے، لہٰذا روزوں کے نقصانات کی تلافی کے لیے صدقہ فطر کا طریقہ مسلمانوں کے اوپر رائج کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ حضرت امام وقیع کا قول آپ کے سامنے نقل کیا، اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جس کو سنن ابی داؤد کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو بےہودہ باتوں اور لغو کلام سے پاک کرنے کے لیے نیز مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر لازم قرار دیا ہے۔ طعمۃ للمساکین کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام عدل اور مساوات کا علمبردار دین ہے، اور عید الفطر کے موقع پر اغنیاء تو خوشی منائیں اور فقراء دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہوں اور تڑپیں۔ اس لیے اسلام نے اغنیاء پر واجب قرار دیا کہ تم عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کیا کرو، تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ فطرہ کو اتنا عام کیا گیا کہ معمولی مالدار پر بھی واجب کیا گیا، اور چھوٹے بڑے، مرد و عورت، غلام و آزاد سب پر اس کو واجب قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ عید الفطر کی رات صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے اس کی طرف سے بھی واجب ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ روزوں میں جو کمزوریاں رہ گئی ہوں ان تمام کوتاہیوں کے ازالے کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا گیا۔ نماز عید سے پہلے اور بعد دونوں وقتوں میں صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ پہلے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ صدقہ فطر کی وجوب کی حکمت آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں واضح ہو گئی۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنی مقدار اور کن چیزوں میں ہے۔ تو خلاصے کے طور پر پہلے سمجھیے، پھر آپ کے سامنے احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی کہ صدقہ فطر 4 قسم کی اجناس کے اوپر، مسلمان کے اوپر 4 قسم کی اجناس کے حساب سے واجب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال فی آخر رمضان اخرجوا صدقۃ صومکم، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصدقۃ صاعا من تمر او شعیر او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوک ذکر او انثى صغیر او کبیر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں لوگوں سے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس نے، کہ تم اپنے روزوں کی زکوٰۃ نکالو، یعنی صدقہ فطر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ ہر مسلمان، آزاد، غلام، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر کھجوروں اور جو میں سے 1 سا اور گندم میں سے نصف سا یعنی واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے ہمیں ان اجناس کے بارے میں پتہ چلا کہ جن اجناس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر مدان من قمح او سواہ او صاع من طعام۔ اس روایت کو
इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। चुनांचे इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि हज़रत आमिर बिन शुऐब अपने वालिद और वो अपने दादा से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गली कूचों में ये मुनादी कराई कि सुन लो, सदका हर मुसलमान पर यानी सदका फ़ितर हर मुसलमान पर वाजिब है, ख्वाह मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, और छोटा हो या बड़ा, और इसकी मिक़दार गंदुम या इसकी मानंद चीज़ों मसलन खुश्क अंगूर वगैरह में 2 मुद्द और गंदुम के अलावा दूसरे गल्लों में से 1 सा है। ये मुद्द और सा कितने हैं इसकी तफसील हम आपके सामने अभी बयान किए देते हैं। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ और सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तुहरतुन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़सी व तुअमतुन लिल मसाकीनी मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन व मन अद्दाहा बअद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मिनस सदक़ात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ितर को ज़रूरी करार दिया जो रोज़ादार के लिए लग़्व और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतज़ाम है। जो शख्स इसे ईद की नमाज से पहले अदा करे तो ये मकबूल ज़कात होगी, और जो इसे नमाज के बाद अदा करे तो ये आम सदक़ात में से एक सदक़ा है। चुनांचे इसी किस्म की एक रिवायत आपके सामने पहले भी बयान हुई, उसके अल्फाज के अंदर थोड़ी सी कमी थी और इसके अंदर थोड़ी ज़्यादती है, जो कि आखिरी अल्फाज हैं, और इस हदीस के रावी भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं। चुनांचे सदक़ा फ़ितर किस पर वाजिब है? जो शख्स ज़िंदगी की लाज़मी ज़रूरियात के अलावा इतनी कीमत के माल का मालिक हो जिस पर ज़कात वाजिब हो सके, उस शख्स पर ईद उल फ़ितर के दिन सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब है। सदक़ा फ़ितर और ज़कात के वजूब में कदर फ़र्क है। ज़कात में माल नामी यानी बढ़ने वाला माल होना लाजमी है, सदक़ा फ़ितर में ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह ज़कात की अदायगी का वजूब साल गुजरने के बाद होता है, सदक़ा फ़ितर फ़ौरन उसी वक़्त वाजिब होता है। अलबत्ता इस मामला में ज़कात और सदक़ा फ़ितर मुत्तहिद हैं कि ये माल कर्ज़ और ज़रूरियात असली से ज़ायद होना चाहिए, वरना ज़कात और सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी के पास कई मकानात हैं, एक में वो रहता है, बकिया मकान खाली हैं, उनकी कीमत निसाब या उससे ज़ायद है और उन पर उसका गुजारा नहीं, तो उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा। इसी तरह जिस तरह साहिब निसाब मुकीम पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है, इसी तरह साहिब निसाब और साहिब इस्तिताअत मुसाफिर पर भी सदक़ा फ़ितर वाजिब होता है, और ईद के दिन वो मुसाफिर जहाँ मौजूद हो वहीं की कीमत लगाई जाएगी। जो मरीज़ रमज़ान के रोज़े न रख सके उस पर भी सदक़ा फ़ितर अदा करना बहरहाल वाजिब है, इसलिए कि सदक़ा फ़ितर एक अलग इबादत है और रमज़ान का रोज़ा एक अलग इबादत है। इसी तरह अगर किसी शख्स पर हस्बे ज़ाब्ता सदक़ा फ़ितर वाजिब हो चुका था, फिर उसका सब माल किसी वजह से ज़ाया हो गया, तो भी सदक़ा फ़ितर उससे साक़ित नहीं होगा, बल्कि जब भी गुंजाइश होगी उस पर सदक़ा फ़ितर की अदायगी लाजिम हो जाएगी। अगली चीज़ सदक़ा फ़ितर के वजूब का वक़्त क्या है? चुनांचे सदक़ा फ़ितर के वाजिब होने का वक़्त ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक है, लिहाजा जो शख्स इस हालत में उस वक़्त को साहिब निसाब के मालिक होने में पाए, यानी सुबह सादिक ईद की नमाज के दिन, ईद उल फ़ितर के दिन ये आदमी सुबह सादिक यानी सहरी का वक़्त जब ख़त्म होता है, उस वक़्त वो आदमी मालदारी की हालत में हो तो उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब होगा। जो शख्स पहले से मालदार था और साहिब निसाब था, लेकिन ईद उल फ़ितर के दिन सुबह सादिक से पहले ही फ़कीर बन गया, तो अब उससे सदक़ा फ़ितर का वजूब ख़त्म हो गया। इसी तरह एक फ़कीर आदमी ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक से पहले मालदार हो गया, तो उसने मालदार होने की हालत में सुबह की तो उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ईद के दिन फ़कीर होने की हालत में सुबह सादिक की, इसके बाद वो उसी दिन साहिब निसाब बन गया, तो अब उस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं होगा। जो नाबालिग बच्चे खुद किसी निसाब के मालिक न हो, उनकी तरफ से उनके बाप पर सदक़ा फ़ितर निकालना वाजिब है, और अगर वो बच्चे खुद साहिब निसाब हों तो उनके माल में से सदक़ा फ़ितर निकाला जाएगा। ऐसे ही कोई आदमी कम फहम या पागल और मखबूतुल हवास हो, तो उस आदमी का सदक़ा फ़ितर अगर वो खुद मालदार है और उसके पास माल वगैरह मौजूद है तो उसका सदक़ा फ़ितर निकाला जाएगा, वरना जो उसका सरपरस्त और उसका बाप है उसकी तरफ से सदक़ा फ़ितर निकालेगा। इसी तरह बड़ी आकिल बालिग औलाद की तरफ से बाप के ज़िम्मे सदक़ा फ़ितर अदा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चे बाप की परवरिश में रहते हों और बाप उनकी तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा कर दे तो फिर उनकी तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। इसी तरह
बीवी का सदका फितर शोहर पर वाजिब नहीं, इसी तरह शोहर का सदका फितर बीवी पर वाजिब नहीं। लेकिन अगर इसकी तरफ से, बीवी की तरफ से खावंद अदा कर दे या बीवी खावंद की तरफ से पूछ कर अदा कर दे तो फरमाया कि उसकी तरफ से अदा हो जाएगा। ऐसे ही पेट में मौजूद बच्चा जो हमल में हो उसकी तरफ से सदका फितर वाजिब नहीं है। इसी तरह जो लोग फोत हो चुके हों सुबह सादिक से पहले पहले, उन लोगों पर सदका फितर वाजिब नहीं। लेकिन अगर साहिब माल हो, साहिब इस्तात हो, ऐसा आदमी हो जिस पर सदका फितर वाजिब होता हो और वो तुलुए सुबह सादिक ईद के दिन फोत हो जाए उसके बाद, तो फिर उसके ऊपर सदका फितर वाजिब होगा। सदका फितर का मुस्तहब वक़्त यह है कि ईद की नमाज में जाने से पहले पहले, यानी ईद की नमाज को अदा करने से पहले पहले उसको क्या कर लिया जाए, अदा कर लिया जाए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, काना यअमुरु बिइख़राज ज़काति क़ब्ल अल-ग़ुदुव्वि लिस्सलाति यौमिल फ़ित्र, जिसका मतलब यह है कि हमें सदका फितर की ज़कात नमाज के लिए निकलने से पहले पहले अदा करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के दौरान ही सदका फितर को अदा कर दिया तब भी सदका फितर अदा हो जाएगा। इसी तरह ईद की नमाज के बाद कोई आदमी सदका फितर अदा करे तो वो अदा ही कहलाएगा, उसको क़ज़ा नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ईद की नमाज से पहले हो जाए। अब सदका फितर की हम मिक़दार के मुतालिक कुछ आपके सामने अर्ज़ करते हैं। सदका फितर की मिक़दार 1 सा खजूर, किशमिश या जौ या निस्फ सा गंदम या उसका आटा या उसके सत्तू वगैरह है। निस्फ सा की मिक़दार मौजूदा औज़ान के एतबार से 1 किलो 574 ग्राम और 640 मिलीग्राम बनती है। इसको फिर एक दफ़ा सुन लें। निस्फ सा की मिक़दार मौजूदा औज़ान के एतबार से 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम बनती है और इसकी कीमत भी अदा की जा सकती है। साहिब हैसियत लोगों के लिए एक मशवरे की बात है कि वो निस्फ सा के एतबार से सदका फितर की मिक़दार चूँकि बहुत कम बैठती है, जो कि बड़े मालदारों के लिए कोई हैसियत और वक़्त नहीं रखती, इसलिए ऐसे लखपति और करोड़पति सरमायादार हजरात को मशवरा है कि वो ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए निस्फ सा गंदम की कीमत लगाने के बजाय 1 सा यानी 3 किलो 150 ग्राम खजूर या किशमिश का हिसाब लगाया करें। अब जो निस्फ सा है उसकी मिक़दार पीछे मैंने आपको बता दी, 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम, इसको एहतियातन पूरे 2 किलो भी आप दे सकते हैं। और 1 सा जो बनता है वो मौजूदा किलो के औज़ान के हिसाब से 3 किलो 150 ग्राम बनता है। चुनांचे गंदम जब देगा तो वो निस्फ सा यानी 574 ग्राम 640 मिलीग्राम देगा, और जब 1 सा देगा तो वो 3 किलो 150 ग्राम देगा, कि इसके अंदर नफ़ा जो है वो फ़कीर का, मुस्तहिक का ज़्यादा है। इसी तरह सदका फितर बाज़ारी भाव के एतबार से होगा, जो फेयर प्राइस शॉप, यूटिलिटी स्टोर और दीगर इस किस्म की कंट्रोल प्राइस वाली जो दुकानें होती हैं उसका एतबार नहीं होगा। इसी तरह एक फ़कीर को पूरा सदका फितर अदा करना ये भी ठीक है। एक सदका फितर को 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 मुख्तलिफ बंदों को देना ये भी जायज़ है। इसी तरह सादात यानी बनु हाशिम को सदका फितर देना जायज़ नहीं है। इसी तरह फितरा की रकम का मसरफ वही है जो ज़कात का मसरफ है, यानी किसी को मालिक बनाना। जब तक उसके हाथ में देकर उसकी मिल्कियत नहीं होगी, लिहाजा उस वक़्त तक सदका फितर अदा नहीं होगा। लिहाजा जब सदका फितर अदा करे तो किसी को मालिक बनाए, वरना किसी ऐसे काम में लगाना जो वक़फ़ के काम हो, जैसे मस्जिद की तामीर हो, कब्रस्तान वगैरह हो, या कोई भी ऐसा काम जो वक़फ़ हो, तो उसके अंदर सदका फितर और ज़कात को लगाना जायज़ नहीं है। इसी तरह सदका फितर काफिर को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। अक्सर उलमा की राय यह है कि सदका फितर मुसलमान को दिया जाए, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है कि सदका फितर जो है वो काफिर को भी दिया जा सकता है। लिहाजा ऐसे काफिर जो मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मुसलमानों के मुल्क के अंदर मुस्तामिन होते हैं, अमन के साथ, सुकून के साथ रहते हैं, उनको तालीफ़ क़ल्ब के लिए सदका फितर देना जायज़ है। इसी तरह मुसाफिर साहिब निसाब शख्स ईद के दिन खुद जहाँ पर मौजूद हो उसी जगह के एतबार से सदका फितर लगाएगा। मसलन पाकिस्तान का रहने वाला शख्स अगर ईद के दिन सऊदी अरब में मौजूद हो तो वो सऊदी अरब में निस्फ सा गंदम के एतबार से सदका फितर देगा, या फिर 1 सा के एतबार से देगा। यानी जिस वक़्त वो जहाँ पर मौजूद होगा वो उसी मुल्क और उसके औज़ान और उसकी कीमत के हिसाब से सदका फितर अदा करेगा। अगर कोई शख्स गैर मुल्की हो, मसलन हिंदुस्तान में अपना
صدقہ فطر ادا کرنا چاہے یا پاکستان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اسے پاکستان نہیں بلکہ اپنے ملک کی قیمت کا اعتبار کرنا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے اور اس نے صدقہ فطر ادا پاکستان میں کرنا ہے، تو کیا وہ پاکستان کے حساب سے کرے گا یا سعودی عرب کے حساب سے کرے گا؟ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، وہ صدقہ فطر کی قیمت اور مقدار کا حساب سعودی عرب کے حساب سے لگائے گا، کیونکہ خود وہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو، ان کو دینا، یہ دوہرے ثواب کا کام ہے کہ اس کے اندر دو ثواب ہیں، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب اور دوسرا جو ہے وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا ثواب۔ اس کے بعد اگلی چیز، صدقہ فطر کو مدارس اور مکاتب کے اندر اساتذہ کو دینا، طلبہ کو اس کا مالک بنانا، کہ اس سے دوہرا فائدہ ہے کہ ایک طرف ہماری صدقہ فطر کی جو ہے وہ عبادت ادا ہو جائے گی اور دوسری طرف دین کی نشر و اشاعت اور دین کی تبلیغ میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔